अब देखते हैं हम लोग फंडामेंटल राइट्स एंड देयर प्रोटेक्शन। आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर टू इन्फोर्स फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 226 हाई कोर्ट्स हैव द पावर टू इशू रिट्स ऑन फॉर फंडामेंटल राइट्स। सुप्रीम कोर्ट्स रोल एज गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जुडिशियल रिव्यू। आर्टिकल 13 इंश्योर्स लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल पावर टू इंटरप्रेट फंडामेंटल राइट्स थ्रू लैंडमार्क जजमेंट्स। की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स इन केसेस 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 removed right to property as fundamental right. 44th Amendment Act 1978 removed right to property as fundamental right. Keswanandan Bharti case 1973 introduced basic structure doctrine. Minerva Mill case 1980 strengthened judicial review against parliamentary supremacy. Keswanandan Bharti case 1973 introduced basic structure doctrine. Minerva Mill case 1918 strengthened judicial review against parliamentary supremacy. Which one of the following statement is not correct? जो करेक्ट नहीं है। के.एम. मुंशी was one of the member of drafting committee of the constitution। बिल्कुल सही है। के.एम. मुंशी was indeed a member of drafting committee of Indian constitution. He played a significant role in formulating key constitutional provisions, including fundamental rights. ठीक। The Constitution of India was adopted by Constituent Assembly. Correct. The Constitution of India was formally adopted on 26th November 1949 by Constituent Assembly and came into effect on 26th January 1950. The Panchayati Raj was recommended by Balwant Rai Mehta Committee Report 1957. बिल्कुल सही है। The Balwant Rai Mehta Committee 1957 recommended the establishment of Panchayati Raj institution as decentralized governance structure. The President of India is the guardian of fundamental right under Constitution. President नहीं Supreme Court Judiciary Supreme Court and High Court is the guardian of fundamental right as per Article 32 and 226. Supreme Court is often called the guardian and protector of Constitution, not President. Which of the following rights can be enforced under Article 32 of Indian Constitution? Can be enforced under constitutional right, fundamental right है। Constitutional right include both fundamental and legal or statutory rights. However, fundamental rights part 3 are enforceable under Article 32. Fundamental right Article 32 provide a remedy for enforcement of fundamental rights. Dr. Ambedkar called it the heart and soul of the Constitution. Statutory rights are granted through ordinary laws passed by Parliament and are not enforceable under Article 32. ठीक है। Which of the following rights were described by Dr. B.R. Ambedkar as heart and soul of the Constitution? राइट टू फ्रीडम, ये आर्टिकल 32 को। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 to 28 ग्रांट रिलीजियस फ्रीडम्स बट अम्बेडकर डिड नॉट कॉल इट द हार्ट एंड सोल। राइट टू प्रॉपर्टी ये पहले आर्टिकल 31 के अंतर्गत आता था बट रिमूव्ड बाई 44th अमेंडमेंट 1978 एंड मेड लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A। ठीक। फिर राइट टू इक्वलिटी नहीं, आर्टिकल 14 to 18 इंश्योर इक्वलिटी बट अम्बेडकर स्पेसिफिकली emphasized Article 32, right to constitutional remedies. Dr. B.R. Ambedkar called Article 32 as heart and soul of the Constitution because it guarantees constitutional remedies through writs. ठीक है। Dr. Ambedkar had described Article 32 of Constitution as the very soul of it. ठीक है। Article 32 provides an effective remedy अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। हाँ बिल्कुल सही है, दोनों सही है। अम्बेडकर एम्फेसाइज्ड आर्टिकल 32 एज हार्ट एंड सोल बिकॉज इट प्रोवाइड लीगल रेमेडी अगेंस्ट वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स अंडर इट। सही है। रिट्स अंडर आर्टिकल 32 क्या? हैबियस कार्पस मतलब बॉडी लेके आया जाए। प्रोटेक्ट अगेंस्ट इलीगल डिटेंशन। मैंडमस मतलब किसी को मतलब ऑफिशियल को ये बताया जाए कि अपना काम करो तुम। प्रोहिबिशन मतलब किसी लोअर कोर्ट को रोका जाए मतलब कि बस तुम आगे बढ़ रहे हो।
सर्टियोरी किसी लोअर कोर्ट को ये बताया जाए कि तुम अब हमको दो। क्यू वारंटो चैलेंजेस द इंडिविजुअल्स अथॉरिटी टू होल्ड ए पब्लिक ऑफिस। ठीक, क्यू वारंटो। केस लॉज रिलेटेड टू आर्टिकल 32, केशवानंद भारती केस 1973 held that judicial review is a part of basic structure. ADM Jabalpur and Shivkant Shukla held that fundamental right can be suspended during emergencies. This was later overruled by Puttaswamy Judgment 2017. The power of Supreme Court to issue writs for protection of fundamental rights. Supreme Court has the power to issue writs like habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto and certiorari for the enforcement of fundamental right. बिल्कुल सही है। Article 32(2) grants the Supreme Court the power to issue 5 types of writs to protect fundamental rights। ठीक है। Parliament may by law empower any other court to exercise within its jurisdiction the power given to the Supreme Court. May by law empower any other court to exercise within its jurisdiction the power given by Supreme Court। हाँ, ये भी सही है, पार्लियामेंट ही तय करेगा। आर्टिकल 32(3) allows parliament to empower the other courts to issue writs similar to Supreme Court। ठीक है। The power to issue writs is a constitutional remedy against the violation of fundamental right. High Court also have writ jurisdiction under Article 226, but their writ power extend to legal rights as well, unlike Supreme Court which is limited to fundamental right। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट पे ही वो कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट रिट यूरिस्डिकेशन भी दे सकता है और वो लीगल राइट पे भी रिट पावर कर सकता है। ठीक है। अंडर विच आर्टिकल इज द सुप्रीम कोर्ट एम्पावर्ड इशू रिट्स? आर्टिकल 32 allows सुप्रीम कोर्ट टू इशू रिट्स टू एनफोर्स fundamental rights। Article 33 empowers Parliament to restrict fundamental rights for armed forces and certain security personnel। मतलब 33 क्या कहता है कि मतलब जो आर्म फोर्सेज हैं उनके लिए रोक दिया जाए। आर्टिकल 132 डील विद अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक। आर्टिकल 226 empowers हाई कोर्ट्स नॉट द सुप्रीम कोर्ट टू इशू रिट्स। ठीक है। इस वजह से आर्टिकल 32 वो है। Which writ is considered the greatest safeguard for liberty? आर्टिकल 32। अच्छा, इसमें हैबियस कार्पस। हैबियस कार्पस में क्या है कि आप अपनी बॉडी मतलब बॉडी लेके आइए, मतलब जिनको आप डिटेन किए हैं उनको लेके आइए। मैंडमस इज इश्यूड टू पब्लिक अथॉरिटी, मतलब डायरेक्टिंग टू परफॉर्म देयर ड्यूटी, मतलब आप अपनी ड्यूटी कीजिए। मैंडमस परमादेश। Habeas corpus to have body is issued to produce a detained person before the court to examine the legality of their detention। Certiorari is issued by a higher court to a lower court। Certiorari हाँ, to lower to quash an illegal order। यहाँ देख लेते हैं एक बार हम लोग। Certiorari प्रोहिबिशन मतलब लोअर कोर्ट को आदेश देता है हायर कोर्ट की अपने बाहर मत जाइए। कैटेगरी ये कहता है कि आप लोअर कोर्ट को कहता है कि आप मेरे पास भेजिए। ठीक है। प्रोहिबिशन प्रिवेंट्स लोअर कोर्ट फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स jurisdiction। Habeas corpus is called great writ of liberty। In ADM Jabalpur Shivkant Shukla versus Shivkant Shukla 1976, the Supreme Court controversially ruled that habeas corpus could be suspended during emergency, which was later overruled। Which writ can be issued by the High Court to secure the liberty of an individual? तो habeas corpus। mandamus क्या कहता है कि मतलब परमादेश देता है किसी ऑफिशियल को अपनी ड्यूटी करने के लिए। क्यू वारंटो मतलब कि क्यू वारंटो क्वेश्चंस इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ ए पब्लिक पोस्ट। ठीक। वारंट मतलब जारी करके वो किया जाता है। हैबियस कार्पस द हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 कैन इश्यू हैबियस कार्पस टू सिक्योर लिबर्टी ऑफ ए पर्सन, मतलब कि डिटेन किया गया है उनको हाई कोर्ट में पेश मतलब कोर्ट में पेश कीजिए। प्रोहिबिशन प्रिवेंट लोअर कोर्ट फ्रॉम एक्सीडिंग jurisdiction। द रिट दैट मे बी फाइल्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ पर्सनल
फ्रीडम हैबियस कार्पस, मैंडमस मतलब किसी को अपने काम करने के लिए बताना, ठीक। क्यू वारंटो की मतलब किसी आदमी को जो इलीगल है उसको मतलब वो बताना कि पब्लिक ऑफिस में जो इलीगल है, इलीगल ऑक्यूपेशन कर रहा है उसको क्वेश्चनिंग करना। हैबियस कार्पस, इट इज issued when a person is illegally detained, making it most effective ready for personal freedom। कैटेगरी क्या है, मतलब किसी कोर्ट को बताना, छोटे कोर्ट को, कि वो मतलब अपना केस हमको दे, बड़े कोर्ट को दे। हैबियस कार मतलब वो कैटेगरी है। हैबियस कार्पस क्या है कि डिटेन किए हुए व्यक्ति को कोर्ट में पेश कीजिए। अच्छा, ये मैच द फॉलोइंग है। हैबियस कार्पस मतलब टू हेल्प द बॉडी, प्रोटेक्ट अगेंस्ट इलीगल डिटेंशन। मैंडमस वी कमांड, डायरेक्ट द पब्लिक ऑफिशियल टू परफॉर्म a duty। prohibition to forbid, stops a lower court from exceeding jurisdiction। certiorari, to be more fully informed, questions the illegal order by a lower court। q warrant by what authority, question the illegal holding of a public office। ठीक, ये देखते हैं। habeas corpus to have body of habeas corpus is issued to bring a detained person before court, सही है। mandamus we command, mandamus is issued to compel a public authority to perform its duty। प्रोहिबिशन मतलब ये बताता है कि मतलब रोकता है लोअर कोर्ट को, ठीक। क्यू वारंटो ये पूछता है कि किस मतलब एक अथॉरिटी को मतलब ये पूछता है कि उसकी लीगैलिटी क्या है, ठीक। प्रोहिबिशन इज इनकरेक्टली मैच्ड, राइट नोन एज पोस्टमार्टम, रिट नोन एज पोस्ट, अच्छा कौन सा रिट पोस्टमार्टम की तरह इस्तेमाल होता है, तो ये होता है कैटेगरी। ये पूछता है मतलब हाई, ये लोअर कोर्ट्स को कहता है तुम मेरे पास भेजो सारी चीज़। प्रोहिबिशन स्टॉप्स ए लोअर कोर्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग विथ ए केस बियॉन्ड इट्स जुरिस्डिक्शन, ठीक। मैंडमस कंपेल्स पब्लिक अथॉरिटी टू एक्ट। मैंडमस कहता है कि मैंडमस मतलब कमांड करने के लिए कहता है। हैबियस कार्पस कहता है कि क्यों डिटेन किया है, ठीक। कैटेगरी इज इश्यूड टू क्वेश एन इलीगल डिसीजन ऑफ ए लोअर कोर्ट, इट रिव्यूज पास्ट डिसीजंस, हेंस रिफर टू एज ए पोस्टमार्टम। कैटेगरी को पोस्टमार्टम कहा जाता है। क्यू वारंटो क्वेश्चन ए पर्सन्स अथॉरिटी टू होल्ड ए ऑफिस। रिट कंपेलिंग पब्लिक ऑफिशियल टू परफॉर्म ड्यूटीज, कौन कहता है कि आप अपना काम कीजिए। हैबियस कार्पस नहीं, ये डिटेन जो किया हुआ था उनको। मैंडमस मतलब परमादेश, मैंडमस इज इश्यूड बाय ए हायर कोर्ट टू कंपेल ए पब्लिक ऑफिशियल टू परफॉर्म ए ड्यूटी दैट दे आर लीगली ऑब्लिगेटेड टू डू, ठीक। प्रोहिबिशन प्रिवेंट्स लोअर कोर्ट्स फ्रॉम एक्टिंग बियॉन्ड दिस जुरिस्डिक्शन, ठीक। क्यू वारंटो चेक्स द वैलिडिटी ऑफ ए पर्सन होल्डिंग ए पब्लिक ऑफिस। मैंडमस रिट इश्यूड टू एन इंस्टीट्यूशन टू परफॉर्म इट्स ड्यूटी, मतलब वो बताता है कि आप अपनी ड्यूटी क्या कीजिए। मैंडमस कैटेगरी क्वेश्चंस एन इलीगल ऑर्डर बाय लोअर कोर्ट, ये उससे ऊपर को वाला कोर्ट क्या करता है, उसको रिव्यू करता है, देखता है कि क्या दिक्कत है क्या नहीं। मैंडमस क्या करता है कि वो किसी को बताता है कि आप अपनी ड्यूटी कीजिए। हैबियस कार्पस डिटेन किया हुआ है तो क्यों किया हुआ है भाई, ठीक। क्यू वारंटो मतलब लीगैलिटी चेक करता है, ठीक। क्यू वारंटो, ओके। और क्या बचा, प्रोहिबिशन मतलब लोअर कोर्ट को ये बताता है कि आप बताइए आपकी मतलब बताता है कि आपकी जुरिस्डिक्शन कहाँ तक है। मैच द फॉलोइंग राइट्स विथ रिलेवेंट आर्टिकल, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट आर्टिकल 29 to 30, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी 32, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 22 to 34, राइट टू इक्वलिटी 14 to 18, सही है। यहाँ मैच करना है। 16 to नो डिस्क्रिमिनेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, सही है। 29 to नो डिस्क्रिमिनेशन इन एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। आर्टिकल 31 राइट टू माइनॉरिटीज टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल राइट्स। आर्टिकल 31(1) नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी एक्सेप्ट बाय लॉ। ये खत्म हो गया है अब लगभग 31 वाला।
इनकरेक्टली मैच्ड फंडामेंटल राइट, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17, करेक्टली मैच आर्टिकल 70 प्रोहिबिट्स अनटचेबिलिटी, ठीक। प्रोहिबिशन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन आर्टिकल 22 होगा ये, आर्टिकल 22 और नॉट आर्टिकल 23। प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्री अरेस्ट एंड डिटेंशन। 23 डील विथ प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स्ड लेबर एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ठीक। 24 क्या कहता है कि हजार्डियस प्लेसेस पे चाइल्ड लेबर आप नहीं करवा सकते। फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 इंश्योर्स फ्रीडम ऑफ रिलीजन। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज आर्टिकल 29 प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, ठीक है। अब देखते हैं रिट्स एंड देयर फंक्शन। हैबियस कॉर्पस पर्सनल लिबर्टी फ्रॉम इलीगल डिटेंशन। मैंडेमस बताता परमादेश कंपेल्स पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज। प्रोहिबिशन मतलब लोअर कोर्ट को बताता है कि आपका ज्यूरिसडिक्शन क्या है, लोअर कोर्ट्स फ्रॉम एक्सीडिंग ज्यूरिसडिक्शन। कैटेगरी क्वेश्चन इलीगल ऑर्डर ऑफ लोअर कोर्ट, पोस्टमार्टम रिट है ये। क्यू वारंटो प्रिवेंट इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ a public office, Q warrant of fundamental right and their relevant article, right to equality article 14 to 18 prohibits discrimination and ensures equal protection of laws. Right against exploitation article 23 to 24 prohibits human trafficking and child labor. Freedom of religion 25 to 28 ensures religious freedom. Cultural and educational right 29 or 30 protect minority rights. Right to constitutional remedies article 32 allows enforcement of fundamental rights. अब ये मैच करना है हम लोगों को। एबोलिशन ऑफ टाइटल्स आर्टिकल 18, राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A, फ्रीडम ऑफ लैंग्वेज ऑफ माइनॉरिटी 29, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स आर्टिकल 26। Article 28 abolishes title except for military and academic distinctions. Article 26 ensures religious denominations' rights to manage their affairs. 29 protects cultural and linguistic minority. 21A free and compulsory education for children aged 6 to 14. ये हम लोग को मैच करना है। फंडामेंटल ड्यूटीज किसको 42nd अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया था 1976 में। पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट, केशवानंदन भारती केस, डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, मिनर्वा मिल केस। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग आर्टिकल 23 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रोहिबिशन ऑफ 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 एडेड फंडामेंटल ड्यूटीज इन Part 4A, Keswanandan Bharti case 1973 give Parliament the power to amend fundamental right but without violating the basic structure. Minerva Mill case 1980 strengthen the basic structure doctrine. Article 23 prohibits human trafficking and forced labor. Case which give Parliament the right to amend fundamental rights. Keswanandan Bharti case 1973 held that Parliament can amend fundamental rights but cannot alter the basic structure. Raj Narayan versus Indira Gandhi case related to election disputes, privileges of Prime Minister. Goloknath case held that Parliament cannot amend fundamental rights. 1967 में ये हुआ था। सज्जन सिंह केस 1965 held that Parliament can amend fundamental right under Article 368. सज्जन सिंह केस। करेक्ट कौन सा? केशवानंदन भारती केस। शंकरी प्रसाद 1951 एंड सज्जन सिंह 1965 अलाउड पार्लियामेंट टू अमेंड फंडामेंटल राइट्स। लेकिन गोलोकनाथ केस में क्या हुआ 1967 में? स्टॉप पार्लियामेंट फ्रॉम अमेंडिंग फंडामेंटल राइट्स। केशवानंदन भारती केस 1973 इंट्रोड्यूस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, ठीक। मिनर्वा मिल्स 1918 स्ट्रेंथेंड बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। मिनर्वा मिल में और स्ट्रेंथन हुआ, ठीक है। शंकरी प्रसाद फिर हुआ, फिर सज्जन सिंह हुआ, फिर गोलोकनाथ हुआ, फिर केशवानंदन भारती हुआ, फिर मिनर्वा मिल हुआ। SSG गेम, ठीक
क्या केस विच इंट्रोड्यूस्ड बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, केशवानंदन भारती केस वर्सेज स्टेट ऑफ केरला। सुप्रीम कोर्ट रूल दैट पार्लियामेंट कैन नॉट अल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, डिफाइंड एसेंशियल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग क्या है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी एंड फेडरलिज्म, जुडिशियल रिव्यू, फंडामेंटल राइट्स, सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक, लेटर रीअफर्म्ड इन मिनर्वा मिल केस 1980। केस विच फर्स्ट आउटलाइन बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, तो केशवानंदन भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। गोलोकनाथ में क्या हुआ था कि ये रोक दिया गया था फंडामेंटल राइट को अमेंड करने से। केशवानंदन भारती इंट्रोड्यूस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। फिर मिनर्वा मिल 1918 स्ट्रेंथन द डॉक्ट्राइन। गोपालन केस डील विथ पर्सनल लिबर्टी एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन, गोपालन केस। Part 3 of the Constitution is based on the US Bill of Rights. बिल्कुल सही है। Many fundamental rights in India are inspired by US Bill of Rights. Right to die is a fundamental right under Article 21. No, not a fundamental right, but Article 21 guarantees right to life. Gyan Kaur versus State of Punjab 1996. Supreme Court ruled that right to die is not included under right to life. ठीक, Indian Constitution is a complete federal constitution कर लेते। India follows quasi federalism। ठीक, फेडरल फीचर प्लस यूनिटरी टिल्ट ड्यूरिंग इमरजेंसी। फंडामेंटल राइट कैन बी रिमूव, बिल्कुल गलत। कांट बी रिमूव बट कैन बी अमेंडेड। केशवानंदन भारती केस 1973 रूल दैट फंडामेंटल राइट आर पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वो करना है हम लोगों को, तो कौन सा है देखिए। ए गोपालन केस 1950, गोलाखनाथ केस 1967, फिर केशवानंदन भारती केस 1973, फिर मिनर्वा मिल केस 1980। अब देखिए, गोपालन वर्सेज स्टेट ऑफ मद्रास अपहेल्ड प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950। गोलकनाथ केस हेल्ड दैट पार्लियामेंट कांट अमेंड फंडामेंटल राइट, लेकिन केशवानंदन भारती केस में कहा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन आ गया। मिनर्वा मिल में स्ट्रेंथन बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। Basic structure doctrine originated from Keswanandan Bharati case 1973. Fundamental right inspired by US Bill of Rights. Can't be removed but can be amended. Landmark case A.K. Gopalan case 1950 preventive detention या कह लीजिए habeas corpus. गोलकनाथ 1967 fundamental right can't be amended. ठीक, केशवानंदन भारती केस 1973 बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। मिनर्वा मिल्स 1980 स्ट्रेंथन बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। रीड्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 हैबियस कॉर्पस प्रोटेक्ट्स पर्सनल लिबर्टी। मैंडमस ऑर्डर ऑफिशियल्स टू परफॉर्म ड्यूटीज। प्रोहिबिशन स्टॉप्स लोअर कोर्ट्स फ्रॉम एक्सीडिंग jurisdiction. Curtiori questions illegal orders. Q warrant to prevent illegal occupation of public office. ठीक, 42nd अमेंडमेंट 1976 इंट्रोड्यूस्ड फंडामेंटल ड्यूटीज। 44 अमेंडमेंट 1978 रीस्टोर्ड सिविल लिबर्टीज रिमूव्ड बाय इमरजेंसी 1975 to 77। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया? ये क्या है? अब लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन। ठीक, एक ओरिजिनली राइट टू प्रॉपर्टी वाज ए फंडामेंटल राइट अंडर 19(1)(f) एंड आर्टिकल 31, मतलब आर्टिकल 19(1)(f) और आर्टिकल 31 के अंतर्गत क्या था? ये फंडामेंटल राइट था। लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 रिमूव्ड इट फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स। अब कहाँ इंसर्ट किया गया? पार्ट 12 में आर्टिकल 300A में ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इट एज ए लीगल राइट इंस्टेड ऑफ फंडामेंटल राइट। Right to property belong to which category? Legal rights. Fundamental rights are guaranteed under Part 3 of the Constitution. Legal right, statutory right are given by ordinary law and can be amended or removed by Parliament. ठीक, right to property is now a legal right under Article 300A, meaning government can acquire private property but only with proper legal procedure and compensation. ठीक, राइट टू प्रॉपर्टी इज स्टैच्यूटरी लॉ एंड लीगल राइट, दोनों है। स्टैच्यूटरी राइट्स आर दोज क्रिएटेड बाय पार्लियामेंट्री लॉ। ठीक, राइट टू प्रॉपर्टी इज ए लीगल और स्टैच्यूटरी लॉ, नॉट ए फंडामेंटल राइट। इफ द गवर्नमेंट टेक्स अवे प्रॉपर्टी विदाउट लीगल प्रोसीजर, ए पर्सन कैन अप्रोच टू हाई कोर्ट आर्टिकल 226 और सुप्रीम कोर्ट 32 आर्टिकल 32 ओनली इफ एनी अदर फंडामेंटल राइट इज वायलेटेड।
ये देखा जाए बोथ स्टेटमेंट। अच्छा ये देखिए, राइट टू प्रॉपर्टी वॉज रिमूव फ्रॉम फंडामेंटल राइट बाय 44th अमेंडमेंट 1978, सही है। अर्लियर इट वॉज ए फंडामेंटल राइट अंडर 19(1)(f) और आर्टिकल 31। 44th अमेंडमेंट रिमूव इट एज ए फंडामेंटल राइट। अब क्या हो गया, लीगल या स्टेचुअरी राइट हो गया। राइट टू प्रॉपर्टी वॉज मेड ए लीगल राइट अंडर आर्टिकल 31A पार्ट 12, बिल्कुल सही है। Article 31 states no person shall be deprived of his property save by authority of law. Now it is enforceable only against arbitrary state action, not against private individuals. ठीक। What is present status of right to property? Legal right. Fundamental right are enforceable under Article 32, but right to property is not. Article 300A introduced by 44th Amendment protect it as a legal right. If property is taken without legal procedure, a person can file a case under Article 226 in High Court, not under Article 32. Which of the following statements are correct? Only statement 2 is correct. Article 301 is related to right to property 9A. 300A है। Article 301 deals with freedom of trade and commerce, not right to property. Statement 2, right to property is a legal right but not a fundamental right, बिल्कुल सही है। Removed from fundamental rights in 1978, 44th amendment के बाद। Now protected as a legal right under Article 300A. 300A was inserted during कांग्रेस गवर्नमेंट, नहीं जनता दल जब यूनाइटेड, मतलब ऐसे ही जनता पार्टी गवर्नमेंट, मोरारजी देसाई गवर्नमेंट इन 1978. कांग्रेस was not in power at that time. Article 300A was inserted during जनता पार्टी गवर्नमेंट. By which amendment was the right to property removed? 44th amendment of amendment of Constitution. Before 1978, right to property was fundamental right according to Article 19(1)(f) or Article 31. 44th Constitutional Amendment 1978 removed right to property from Part 3 fundamental right, inserted Article 300A in Part 12 making it a legal right. ठीक है। 14th Amendment Act 1976 extended the scope of land reforms. 42nd Amendment, known as Mini Constitution, introduced fundamental duties DPSP and curtailed judicial review. 46th Amendment 1982 related to sales tax reforms. Before 1978, right to property was a fundamental right under Article 19(1)(f) or Article 31. 44th Amendment Act 1978 removed right to property as a fundamental right, introduced Article 300A making it a legal right. Current status, legal right, statutory right, enforceable under Article 226 High Courts. ठीक, not enforceable under Article 32 Supreme Court. लीगल राइट, अच्छा राइट टू प्रॉपर्टी नहीं वो ठीक है। इंपॉर्टेंट केस लॉज, केशवानंदन भारती केस, लिमिटेड पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड फंडामेंटल राइट्स, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन लागू हुआ। वोमन राव केस 1981, प्रोटेक्टेड लैंड रिफॉर्म्स एंड प्रॉपर्टी लॉज फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। When was fundamental right of property abolished? 44th Amendment Act 1978 में। Originally right to property was fundamental right under Article 19(1)(f) or 31. 44th Amendment Constitutional Amendment Act 1978 removed it as a fundamental right and made it a legal right under Article 300A. This amendment was passed during Janata Party government Morarji Desai tenure. Which amendment deleted the right to property as a fundamental right? 44th Constitutional Amendment Act 1970. Which amendment deleted the right to property as a fundamental right? 44th Constitutional Amendment 1978. ठीक, right to property from Part 3 to Part 12 under Article 300A. 37th Amendment Act क्या created Sikkim as
स्टेट 1975 में। 38 अमेंडमेंट 1975 मेड प्रेसिडेंट्स ऑर्डिनेंस पावर इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, मतलब जो प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस पावर रहेगा वो जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत नहीं आएगा। 47th अमेंडमेंट एक्ट 1976 known as mini constitution added fundamental duties and changed DPSP, by which amendment was right to property abolished आर्टिकल 44th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। ठीक है। 24 में क्या हुआ, गिव पार्लियामेंट द पावर टू अमेंड फंडामेंटल फंडामेंटल गोलकनाथ केस हुआ था शायद, हाँ गोलकनाथ केस हुआ था, हाँ। अब 25th अमेंडमेंट 1971 रिस्ट्रिक्टेड राइट टू प्रॉपर्टी एंड कंपनसेशन फॉर लैंड एक्विजिशन। 42nd में क्या हुआ, स्ट्रेंथन डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड रिड्यूस फंडामेंटल राइट्स पावर। 44 अमेंडमेंट रिमूव्ड विच फंडामेंटल राइट, प्रॉपर्टी को। 44th अमेंडमेंट रिमूव्ड राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स, अदर फंडामेंटल राइट्स रिमेन अनचेंज्ड। Right to property was deleted from fundamental right by the 44th अमेंडमेंट एक्ट। ठीक, इसको फिर लीगल और स्टेचुअरी राइट बना दिया गया। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 एडेड सोशलिज्म, सेकुलरिज्म एंड इंटीग्रिटी टू प्रीएम्बल। 43rd रीस्टोर्ड पावर ऑफ जुडिशरी, रिवर्स्ड 42nd अमेंडमेंट चेंजेस। 45th में क्या हुआ, 1980 related to extension of reservation of SC STs in legislature। 1980 में कौन सा, इसमें राइट टू फंडामेंटल, मतलब जो फंडामेंटल राइट नहीं था, तो राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी वाज अ फंडामेंटल राइट बिफोर 1978 बट वाज रिमूव्ड बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट। अदर करंट फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 क्या है, राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 to 18, राइट टू फ्रीडम 19 to 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 26 27 28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट 29 30, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंडामेंटल राइट, राइट टू प्रॉपर्टी क्या है, वो फंडामेंटल राइट नहीं है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 अलाउज सुप्रीम कोर्ट टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट। राइट टू पीसफुल असेंबली आर्टिकल 19(1)(b), citizen can assemble peacefully। राइट टू फ्री मूवमेंट आर्टिकल 19(1)(d), citizen can move freely across India। राइट टू प्रॉपर्टी 1300A is a legal right, not a fundamental right। विच इज़ नॉट among the 6 फंडामेंटल राइट, राइट टू प्रोटेस्ट, ये इलीगल है लगभग। राइट टू प्रोटेस्ट इज नॉट सेपरेटली मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन बट इज derived from article 19(1)(a) freedom of speech and 19(1)(b) right to assembly। right to protest है, ठीक। 6 फंडामेंटल राइट्स कौन कौन सा, राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 to 18, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 to 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 24, राइट अगेंस्ट राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 to 28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट 29 और 30, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट ग्रांट द फॉलोइंग राइट, राइट टू इक्वल शेल्टर। राइट टू इक्वल शेल्टर इज नॉट फंडामेंटल राइट। राइट टू इक्वल शेल्टर इज derived फ्रॉम आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ। राइट टू इक्वलिटी 14 to 18 is a fundamental right। Right to property article 19(1)(f) and 13(1). 31 was a fundamental right before 1978, लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 abolished right to property as a fundamental right, introduced article 300A in part 12 making it a legal right। ठीक, फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 6 राइट इक्वलिटी 14 to 18, फ्रीडम 19 to 22, एक्सप्लॉयटेशन 23 24, रिलीजन 25 26 27 28, ठीक। फिर कल्चर एंड एजुकेशन 29 30, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज 32, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी इज नाउ ए लीगल राइट एंड कैन बी चैलेंज्ड ओनली अंडर आर्टिकल 226 इन हाई कोर्ट्स।
Important cases related to property laws. Case 1 and Bharti case 1973. Parliament cannot amend the basic structure. Goloknath 1967 stated fundamental right can't be amended. Minerva Mill case reaffirmed basic structure doctrine. Which of the following is not a fundamental right granted to Indian Constitution? Right to information, fundamental right. Right to settle anywhere, Article 19(1)(e), fundamental right of Indian citizen. Right to gender equality, Article 14 or 15(1) ensures equality before law. Gender right against exploitation, Article 23-24. Exhibit human trafficking and forced labor. Right to information, RTI, not a fundamental right but derived from Article 19(1)(a), freedom of speech and expression. It became a legal right through RTI Act 2005. Article which of the following rights are not available to all person in India? Article 14 equality before law available to all person. आर्टिकल 15-16 सिर्फ सिटीजन्स को, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ भारतीयों को. आर्टिकल 19(1)(d) फ्रीडम टू मूव फ्रीली इन इंडिया ओनली फॉर सिटीजन्स. राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन ओनली फॉर सिटीजन बेस्ड ऑन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट. Which fundamental right is also available to non-citizen? Right to constitutional remedies. Article 32 available to all persons, citizens and foreigners. Right to speech. Article 19(1)(a) only for citizens. Freedom to move and settle. Article 19(1)(d) only for citizens. Right to property. 308 legal right but not a fundamental right. A British citizen staying in India cannot claim which right? Freedom of trade and profession. Article 19(1)(g) right to trade, business and profession only for citizen. Article 14 equality before law available to all person. Right to life, personal liberty available to all person. Article 25 right to freedom of religion available to all person. स्पेशल एडवांटेज टू नेशनल माइनॉरिटीज़ ऑफ इंडिया क्या है? आर्टिकल 30 राइट टू स्टैब्लिश एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन गिवन टू माइनॉरिटीज़. नो ऑटोमेटिक नॉमिनेशन इन लोकसभा. नो स्पेशल रिप्रेजेंटेशन इज गिवन टू माइनॉरिटीज. सही है. माइनॉरिटीज़ कैन बेनिफिट अंडर PM's 15-point प्रोग्राम. दिस इंक्लूड स्कॉलरशिप एंड अदर इंसेंटिव. सही है. व्हेन वाज बॉन्डेड लेबर एबोलिश्ड इन इंडिया? 1976 में. आर्टिकल 23(1) प्रोहिबिशन ऑफ बॉन्डेड लेबर. बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबोलिशन एक्ट 1976 was passed. 1975 ordinance issued but replaced by 1976 एक्ट. ठीक है. अरे अभी तो है, कोई दिक्कत नहीं. चाइल्ड लेबर was prohibited in hazardous employment. Article 24 prohibition of employment of children below 14 years in factories, mines and hazardous job. MC Mehta versus Tamil Nadu State 1996 Supreme Court judgment prohibiting hazardous child labor. United Nations Charter also declares special protection for child labor. अब देखते हैं. राइट अवेलेबल फॉर बोथ सिटीजन्स एंड फॉरेनर्स कौन से हैं? 14 राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ. 21 right to life and proper liberty. 22 protection from arbitrary detention. 25 to 28 right to religion. 32 right to constitutional remedies. ये सब इंडियन और फॉरेनर सबके लिए अवेलेबल है. लेकिन अब देखते हैं 1 2 3 3 4 4 5 6 7 8 8. अब बाकी देखते हैं. राइट अवेलेबल ओनली टू सिटीजन ऑफ इंडिया. आर्टिकल 15-16 राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन इन पब्लिक प्लेसेस एंड जॉब्स. 15-16. आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच, ट्रेड मूवमेंट एक्सेट्रा. 29 to 30 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट फॉर माइनॉरिटीज. राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड ऑफिस. चाइल्ड लेबर एंड बॉन्डेड लेबर prohibition. Bonded labor system abolition act 1976.
MC Mehta versus State of Tamil Nadu 1996. Supreme Court ban on hazardous child labor. Fill in the blank. Rights without duties are like men without shadows. Rights without duties are like men without shadows. This quote attributed to Sir Ernest Barker, a British political scientist. It emphasizes the interdependence of rights and duties. One cannot exist meaningfully without the other. Rights without duties. Fundamental right, part 3, and fundamental duties 51A. A complement to each other for ensuring balance. 51A, balance democracy. Relationship between rights and duties in India. Rights are correlated with duties. Rights and duties are two sides of same coin. Justification according to Hall and every right implies a corresponding duty. Supreme Court ruling rights may not always be enforceable, but they impose legal and moral obligation. Right to education, Article 21A. Duty of the state to provide free and compulsory education. Right to a clean environment. Duty of citizen to protect it. Article 51AG. Which one of the following statement is correct about rights? Rights are claim of the citizen against state. Rights are legal entitlements ensuring protection of individual freedom against state's power. John Locke's social contract theory, citizens surrender some freedom to the state in exchange for the protection of their natural rights. Fundamental rights in India, Part 3 of the Constitution, enforceable through Article 32 Supreme Court and 226 High Courts. State action is restricted to safeguard individual liberty. Origin of the concept of right to service. Great Britain se hai. Right to service refers to time-bound service delivery by the government. First introduced in Great Britain, later adopted by several countries. Right to service. Madhya Pradesh, first state implemented Right to Service Act 25 September 2010. Bihar, second state implemented on 15 August 2011. एम क्या है? टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी इन गवर्नमेंट सर्विसेज. ठीक. राइट्स वर्सेस ड्यूटीज. फंडामेंटल राइट पार्ट 3, प्रोटेक्ट इंडिविजुअल फ्रीडम इन्फोर्सेबल थ्रू कोर्ट्स जैसे आर्टिकल 14. राइट टू फ्रीडम 19. राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज 32. फंडामेंटल ड्यूटी आर्टिकल 51A, मोर एप्लीकेशन ऑफ सिटीजन्स, not enforceable directly but can be promoted by the state. Example, respecting the national park, protecting the environment. ठीक. चलिए यहाँ हम लोग का फंडामेंटल राइट ख़त्म हो जाता है. थैंक यू, बाय बाय. अब मिलते हैं अगले DPS में.